Good morning, everyone. So, in the today's physics class, we are going to start new topic, Stokes law. This is very important topic, and numericals are also coming from this topic. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि what is the Stokes law. Before going to start the Stokes law, we should know some important term, that is the viscous drag on a body which are falling through a fluid. हम ये समझते हैं कि if we have a body which falls in a fluid, तो why that will experience या why viscous force is produced there, या how viscous force is produced there. Because Stokes law gives the expression for that force only. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब कोई बॉडी है, if that are falling through a fluid, तो how that will experience a viscous drag. चलिए समझते हैं. अब अगर मान लीजिए we have a body which falls through a viscous fluids, तो what will happen? The layers of a fluid in contact with the body moves with its velocity. समझ रहे हैं ना? अगर कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड ही है, अगर उसमें कोई बॉल, मेटालिक बॉल अगर हम फॉल करते हैं, मेटालिक बॉल अगर गिरती है, तो व्हाट विल हैपन? वहां की जो भी लिक्विड लेयर है विच आर इन कंटेक्ट विथ द मेटालिक बॉल, तो क्या होगा? दैट विल कम इन द मोशन. तो वहां पे तो मोशन हो जाएगी. बट द लेयर विच आर या बट द फ्लूइड विच आर एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस, इससे अगर दूर की जो लेयर है वो क्या होगी? दैट विल बी इन रेस्ट, क्योंकि वहां पे तो वेलोसिटी पहुंचेगी नहीं. वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो होगी दैट विल जनरेटेड ऑन द लेयर विच आर एट द कंटेक्ट ऑफ द मेटालिक बॉल. द लिक्विड्स या द फ्लूइड्स विच आर फार अवे फ्रॉम द बॉल या फ्रॉम द बॉडी दैट विल रिमेन रेस्ट. तो ये क्या हुआ? इफ वन थिंग इज मूविंग, other thing is rest, तो what will happen? Their relative velocity will produce ना. दो बॉडी है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, एक मोशन में है, तो बिटवीन दिस टू बॉडी देयर इज ए रिलेटिव मोशन. तो क्या होगा? यहां पे जो लेयर्स ऑफ द लिक्विड विच आर इन कंटेक्ट विथ द बॉडी दैट इज इन मोशन, बट द लिक्विड लेयर्स या फ्लूइड लेयर विच आर फार अवे फ्रॉम द मेटालिक बॉडी is in rest, and because of that they produce relative motion between the different layers of a fluid. और इसकी वजह से क्या होगा? The body experience a viscous force. क्योंकि आपको पता है कि why viscous force is produced? This is because of the relative motion between the liquid layers या fluid layers. फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच अगर रिलेटिव वेलोसिटी है, then viscous force is produced, and this viscous force will act on that body. Yeah, the body will experience a viscous force which has tendency to retard its motion. It's clear? And this retarding force increases with the increase in velocity of the body. दो चीजें हो गई कि हमने ओरिजिन समझ लिया कि हाउ viscous force is produced या act on a body, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे हम टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे. तो इन बोथ द केसेस वी शुड नो अबाउट दिस विस्कस फोर्स कि हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड. दिस इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स आर लिक्विड which arises due to the motion of the body. And if the velocity of body increases, then this viscous force also increases. It's clear? अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, स्टोक्स लॉ. तो स्टोक्स लॉ क्या कहते हैं? इनका स्टेटमेंट है कि दिस बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल spherical body of radius r
moving with uniform velocity v through a fluid of viscosity eta is given by, मतलब क्या है, Stokes law gives an expression for a viscous drag for viscous force acting on a spherical या acting on a body. क्लियर? तो क्या स्टेटमेंट है, क्या फार्मूला है, दैट वी आर गोइंग टू राइट. पर लिख लेते हैं, फिर क्लियर और कर लेंगे इसको. तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि द बैकवर्ड viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with uniform velocity v through fluid of viscosity eta is given by F is equal to 6 pi eta RV. F is equal to, F क्या है, this viscous backward viscous force, F is equal to backward viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with uniform velocity through a fluid of viscosity eta. ये पूरा स्टेटमेंट है. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द स्टोक्स लॉ. ये क्लियर हो गया. यही आपका स्टोक्स लॉ है कि स्पेस F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV. इट्स क्लियर. अब ये इंपिरिकल लॉ है, इसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो हम ये एक्सपेरिमेंट से किया गया, इसको हम डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, from that concept we are going to derive this Stokes law. So now we are going to start derivation of Stokes law. तो derive करने के लिए by using the dimensional concept use करते हैं. तो how we are deriving? We are supposing that the given quantity depends on what factor? Then we are taking the power and some other things. So first of all we are going to start to discuss कि on what factor the viscous force depends. तो पहले पढ़ लेते हैं कि the viscous force we have given this. The viscous force capital F acting on a sphere moving with a fluid depends on किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, मतलब ज्यादा विस्कस फोर्स होगा उस पर डिपेंड करेगा, कम विस्कस फोर्स है दैट क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, मतलब अगर बड़ी बॉल होगी छोटी बॉल होगी तो डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस इसका जो वैल्यू होता है दैट इज आल्सो डिफरेंट. डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ
रेडियस ऑन द साइज, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। देखिए हमने यहाँ पे स्फेरिकल बॉल ले लिया है, तो दैट्स नो प्रॉब्लम, हम स्फेयर की केस में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा दिस थर्ड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी, इसको हम आर ले लेते हैं, रेडियस आर, वेलोसिटी वी ऑफ द बॉडी। क्लियर? ये हमारे 3 फैक्टर हैं ऑन विच दिस विस्कस फोर्स डिपेंड्स। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेट एफ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईटा पावर ए। ये तो हम प्रोसेस पता है, जब हम इसको कैसे रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं इन द डायमेंशनल, ईटा पावर ए, आर पावर बी एंड दिस वी पावर सी, ये तो होता है। या हम इसको लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ईटा पावर ए, आर पावर बी और वी पावर सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2, वेयर के इज व्हाट, के इज ए डायमेंशनलेस, वेयर लिख लेते हैं, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वी आर फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज प्रेजेंट हियर। तो डायमेंशंस अब लिख देते हैं। नाउ डायमेंशंस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज आर, क्या क्या है, एफ की डायमेंशंस क्या होगी, एफ की डायमेंशंस होगी एम एल टी पावर -2, ये तो आपको पता होगा, एफ का हमने लिख लिया। डायमेंशंस ऑफ ईटा वी आर राइटिंग हियर डायरेक्टली, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ बराबर ईटा ए डी वी अपन डी एक्स है, तो ये हो जाएगा एम एल पावर -1 टी पावर -1 देन नेक्स्ट हमारा एफ का हमने ले लिया, के डायमेंशनलेस है, ईटा हुआ, आर डायमेंशंस ऑफ रेडियस कितना होगा, दिस इज इक्वल टू लेंथ, देन वेलोसिटी डायमेंशंस ऑफ वी कितना हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ ईटा, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, दिस विल बी हाउ मच, एल टी पावर -1, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप वाज व्हाट, वी हैव टू पुट दीज डायमेंशंस इन इक्वेशन नंबर 2. Now substituting, using this in equation 2, क्या मिलेगा हमें, we will get f का m l t पावर -1 2 सॉरी f हो गया, सम कांस्टेंट k हमारा दिया हुआ है, k की डायमेंशन तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। देन बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट ए बी सी ना, तो के की डायमेंशंस नहीं लिखना है, ये हम लिखेंगे ईटा एम एल पावर -1 टी पावर -1 पावर ए, दिस आर एल पावर बी, वेलोसिटी एल टी पावर -1 पावर सी, ये हमने लिख लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एम एल टी पावर -2, दिस is equal to, we have m पावर a, बाकी m कहीं है नहीं तो m पावर a, l पावर -a, और भी कहीं है, यहाँ पे b है तो प्लस b और यहाँ पे प्लस c, -a + b + c, t पावर -a और यहाँ पे t है -c, this. Now comparing the dimensions, equating the power या dimensions, now equating the power, ये कहां से जाते हैं, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेटिंग द पावर्स m, powers of m, l and t from both
both sides we get what we will get. यहां पे क्या है, यहां पे a है, यहां पे पावर कितना है 1 है, तो a will be equal to 1. यहां पे पावर 1 है, यहां पे कितना पावर है, तो माइनस a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 1. यहां पे कितना है माइनस a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2. क्लियर. अब नाउ वी हैव दिस a बराबर 1 है, यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस विल गिव्स a प्लस c माइनस विल बी कैंसिल आउट बराबर 2, और a बराबर कितना है 1 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया. c भी 1 है, a भी 1 है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड c, तो हमें क्या मिलेगा, विच गिव्स कि आपका हो जाएगा माइनस 1 प्लस b प्लस 1 बराबर 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस गिव्स b इज इक्वल टू 1. तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1. तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a b c, देयरफॉर from equation 2 we have, जो हमने इक्वेशन लिखा था, f इज इक्वल टू k ईटा r v पावर 1 1 1 abc की पावर, या यह बराबर कितना हो जाएगा, k ईटा r v. अब एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट कि ये k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली वी हैव, ये हमें दिया रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ है एग्जाम में तो विल राइट डाउन दिस, किस ये हमारा आंसर होगा. अदरवाइज इफ वी हैव गिवन, इफ यू नो, तो वी कैन पुट द वैल्यू. एक्सपेरिमेंटली वी हैव, एक्सपेरिमेंटली वी हैव k इज इक्वल टू 6 पाई, देयरफॉर f बराबर कितना हो जाएगा, 6 पाई ईटा आरवी. ये तो हमने डिराइव किया था, ये तो स्टेटमेंट हमने दिया था कि दिस विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी. दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड स्टोक्स लॉ, which is the required स्टोक्स लॉ. ये तो हमें प्रूफ करना था कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू V. अब एक चीज और है नेक्स्ट की, ऑन व्हाट कंडीशन स्टोक्स लॉ इज वैलिड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन व्हाट कंडीशन द स्टोक्स लॉ इज वैलिड. स्टोक्स लॉ तो हो गया कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी. नेक्स्ट इज कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस स्टोक्स लॉ इज वैलिड. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. अगर ये नहीं है तो स्टोक्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा. फर्स्ट कंडीशन क्या है, द फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी मूव्स हैज इनफाइनाइट एक्सटेंशंस. क्या होना चाहिए, द फ्लूइड्स through which the body moves should have infinite extension, has infinite extension. Clear? तो इफ यू हैव ए बॉडी ऑफ रेडियस 1 mm वेरी स्मॉल है, तो देन वी कैन से दैट कि ये आपका थोड़ा सा भी अगर फ्लूइड्स है तो वी कैन कंपेयर विथ दैट कि हमारा जो फ्लूइड्स का जो एक्सटेंशन है दैट इज लार्ज या इनफाइनाइट. सेकेंड फैक्टर इज व्हाट, द बॉडी शुड बी परफेक्टली रिजिड, बिकॉज कि जो विस्कस फोर्स है दैट शुड नॉट चेंज द शेप ऑफ दैट बॉडी. उसकी रेडियस जो होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. तो द बॉडी शुड बी, द बॉडी इज परफेक्टली
रिजिड एंड स्मूथ, रिजिड एंड स्मूथ होनी चाहिए। थर्ड फैक्टर एक बार लिख लेते हैं फिर क्लियर कर लेंगे कि देयर इज नो स्लिप बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लूइड, देयर इज नो स्लिप, इस बात को समझ रहे हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट सम अदर रिलेटिव वेलोसिटी। तो वो चीज जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल की वजह से हो रहा है या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स के हो रहा है, दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो देयर शुड बी नो स्लिप बिटवीन द बॉडी and there should be no slip between the body and fluids. Next factor is the motion of the body, समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, the motion of the body does not give rise to turbulent motion and it is hence motion is streamline motion। अब ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको आपको अभी समझना पड़ेगा, आगे के लिए हम इसको समझेंगे, हमारे पास पढ़ना है जब हम सरफेस टेंशन और सब चीजें स्टार्ट करेंगे। तो देयर विल डिस्कस टर्बुलेंट फ्लो और आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो और ईडीज मोशन क्या होती है। सिर्फ इतना हम समझ लेते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, देयर शुड बी ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मोस्ट जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स है, दैट इज मूविंग विथ ए सम माइनर। और टर्बुलेंट क्या होता है, दैट डिस्टर्ब्ड होता है, ये रैंडम मोशंस होती है। समझ लेते हैं, ये टर्बुलेंट का मतलब आप यहां समझ लेते हैं कि सिर्फ यहाँ पे रैंडम मोशंस होती है और यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर मोशन ही थे। क्लियर? और मोर डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करने की बहुत जरूरत नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि जो बॉडी है दैट शुड मूव इन सच ए वे दैट द मोशन ऑफ द फ्लूइड शुड बी स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट और ईडीज नहीं उसमें प्रोड्यूस होना चाहिए, मोशंस को इरेगुलर नहीं हो जाना चाहिए, रैंडम मोशंस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये चीज हम पढ़ेंगे आगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, टर्बुलेंस क्या होते हैं, ये सब चीजें आगे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिटेल करने का डिस्कस करने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पॉइंट इज दैट द साइज ऑफ बॉडी इज स्मॉल, द साइज ऑफ द बॉडी is small but it is larger than the distance between the molecules of the liquid. Thus the medium is homogeneous and continuous for such a body.
ये समझते हैं कि क्या होना चाहिए, द साइड ऑफ द या साइज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल बट इट इज larger than the distance between the molecules of the liquid. Thus, the medium is homogeneous and continuous for such a body. इस बात को समझ लेते हैं कि जो साइज ऑफ द बॉल तो हम स्मॉल ले ही रहे हैं, बट जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है ऑफ द लिक्विड वो इससे आपका कम होना चाहिए, मतलब उससे आपकी साइज जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, सो दैट जो बॉडी फॉल कर रही है उसके लिए जो मीडियम होता है, जो फ्लूइड है, दैट शुड बी होमोजीनियस एंड कंटिन्यूअस। मतलब कहने का मतलब ये हमारा कंक्लूजन ये हो गया कि स्टोक्स लॉ वैलिड कब होगा, जब आपका फ्लूइड का जो एक्सटेंशन है इन कंपेरिजन टू द बॉडी दैट शुड बी इनफाइनाइट, मतलब वो लार्ज होना चाहिए। जो हम बॉडी ले रहे हैं दैट शुड बी परफेक्टली रिजिड होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। रिजिड बॉडी आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जो आपके बीच जो रिलेटिव मोशन है विच क्रिएटेड बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड दैट शुड बी क्रिएटेड ओनली बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। यहां पे कोई सम एक्स्ट्रा स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लूइड। अब आपका जो मोशन ऑफ द बॉडी होता है दैट शुड बी लिमिटेड, दैट शुड नॉट क्रिएट द मोशन ऑफ द फ्लूइड टर्बुलेंट। द मोशन ऑफ द फ्लूइड शुड बी स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। क्लियर? ईडीज मोशन, ईडीज का मतलब हवर जो होता है, डिस्टर्बेंस जो होता है इन ए लिक्विड दैट शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड देयर। द साइज ऑफ द बॉडी जो है शुड बी स्मॉल but that should be larger than the size या the distances between the molecules of the fluids। या in a single word अगर हम इसको बोलें तो ये कहना चाहिए हमें कि the fluids should create a homogeneous medium and continuous medium, homogeneous and continuous medium for the motion of the bodies which are flowing in that। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड स्टोक्स लॉ प्रॉपरली। स्टोक्स लॉ में सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट देखा कि व्हाट इज द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ सिंपली गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर ए विस्कस फोर्स ऑफ ए बॉडी विच आर फ्लोइंग थ्रू द फ्लूइड्स या लिक्विड्स। एक्सप्रेशन ये स्टेटमेंट क्या है कि द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी